So before we start this topic today, right, a general gyan that always happens at the beginning of my classes. So I'm going to give that. Whole point is a lot of people are waiting for the right time to start their preparation. It must be after their exam. It must be after they quit their job in July. I don't know what are logics. Whole point is people don't consider the fact that there are good days and bad days. There are a lot of festivals that happen in the second half. There can be any sort of family, health, any emergency that can come, right? And then you will make it a reason for why you did not do good enough. And then appear for another year. But the reality is not that you did not do good enough because of something. It's because no matter what, it's your mindset problem. You could have you knew that you had to do CAT since January, but you waited for July to start your preparation. Right? What about that, bro? How can you say some incident happening at some workplace or at college or in family as a reason for it? The reason was that you did not accommodate enough for it. जब जो पढ़ाई करनी थी वो तुमने नहीं करी. You kept on delaying till the point where it becomes like a do or die situation. And now you have to die because you couldn't do, right? So I'm happy that all of you all are not in that situation. And this is the reason why I give you weekly targets to follow. Because it is not just about syllabus completion for us. Because I have trained all of you all enough to think on the lines that it's hardly about completing the syllabus. CAT exam is hardly. Honestly, CAT exam is only 20-30% about completing syllabus. I mean, you can complete 70% of the syllabus and still score a 99 percentile. Okay. That is how less consequential it is. What matters a lot more, it's consistency, it's discipline, it's strategy, it's mindset. These are the things that actually matter. And these are the things that most people don't know that it matters. Log piche padhe ki main complete kar lu syllabus. So that is where you win, right? The moment you correct your mindset to realize कि oh, that is not what CAT exam is. और the point is कि ना वो बोलना बहुत आसान है, but समझना और उसको actually अपने जहन में absorb करके implement करना कि हाँ यार नहीं consistency matter करता है, ध्यान ही नहीं रहेगा. Right? क्योंकि syllabus दिखता है, questions, answers दिखते हैं, it's tangible. Whatever is tangible, whatever is materialistic seems doable. But things like mindset, strategy, consistency are not tangible. Who is to write it? Nobody. Who is to show you yes or no, right or wrong? Nobody. So then it becomes difficult to apply. So वो हमें नहीं करना है. I really love that all of you all are consistent in the classes, despite your exams, despite your jobs, despite your tough days. And I'm really proud of you and I'm telling you it's going to pay off. ठीक है? So good, right? Now let us quickly begin. Achha, by the way, another thing, if anybody is thinking of quitting the jobs, etc., do consult. है ना? नहीं, मतलब right now the economy is very tricky and taking that decision shouldn't come that easy. Because at the end, all of you all are doing MBA you're taking this CAT exam, not for doing MBA. Remember this sentence. You're not taking CAT exam to clear CAT exam. You're not taking CAT exam to do MBA. You are taking CAT exam to get a good career ahead. Right? The end goal is to get a good career ahead, to be employable in this uncertain market. That is why you're doing. लोग क्या करते हैं ना, अपनी priorities misplace कर देते हैं. लोगों को लगता है कि मैं पढ़ के CAT crack कर लूंगा, right? या मैं पढ़ के इस कॉलेज चले जाऊंगा. But it's not about going to that college or to that B school. It is not about that. It is about what do you do after. Let's say तुम चले गए IIM अहमदाबाद में, but तुम IIM अहमदाबाद के bottom 10% 20% के स्टूडेंट हो, या तुम्हारा प्रोफाइल bottom 10% 20% का, तो तुमको क्या लगता है तुम्हें जॉब्स मिल जाते हैं? तुम्हें तो वही जॉब मिलेगा जो प्रॉब्ली किसी IIM बोधगया या IIM अमृतसर वाले को मिलेगा. वो भी तो बात होती है ना. So ये college एक time था, but it's really important to have a very strong profile. Bygones are bygones. If you have a 6, a 7, a 8 in your previous profile, if you do not have a 9 in profile, it's gone. But what you do right now is in your hand, right? It is in your hand right now. तो वो हमें सिक्योर करना है. Whatever is in your hand right now, वो हमें सिक्योर करना है. तो ये सारे decisions के पहले make sure you book a one-on-one slot with me and make sure we sit together and we analyze if you need to quit the job or not, or what you need to do before going ahead, etc. ये decisions खुद से मत लेना for sure. And बाकी तो we are going to stay consistent and keep following our goals. So very good on that, right? So are we all now ready to learn applications of inequalities? Yes. Very good. Secondly, have we all revised the previous class on inequalities, and do we remember all the kind of inequalities we learned? Yes, very good. Algebra is very critical. Now, here on, whatever we study throughout VRC, throughout DLR, throughout quants, you're going to revise it at least for 15 minutes before the class. I've already asked you to make a formula book and a classwork book, right? On formula book, we just write formula, tricks, or whatever we learned. And the classwork is where we practice questions, cross, tick, whatever. We practice all the homework also there. Formula book is a very neat book which has just to the point things written. कि class से पहले 15 मिनट पहले मैं देख के आ जाऊँ, क्योंकि algebra is overall very much connected, and it's not like arithmetic that one chapter is
exclusive of another chapter. It's all related. It's all in the family together. And same is going to happen with geometry. Same is going to happen with quantum maths. So and same is going to happen with DLR. Same is going to happen with VRC. So whatever concept you are learning, whatever base logics you are learning, you have to keep it all intact. हमारा basic सीखने का hunky dory period अभी थोड़ा चला गया है. The super easy part is gone. अब easy part is there because मैं पढ़ा रही हूँ तो easy होगा, tough तो नहीं होगा, right? But this is not a super easy part, right? It is a less easy part. तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है. All right. So what all inequalities did we learn? We learned a quick recap. Let me take a thicker pen here. We learned linear inequalities. Okay. We learned linear inequalities. Then we learned simultaneous. है ना? फिर उसके बाद we learned fractional. Right? Then we learned quadratic. Then we learned a special case. Right? X minus A, X minus B, X minus C वाला. वो वाला सीखे हम, है ना? Then what was the last one? What was the last one? Yes, it was modulus inequality, right? Linear inequalities में हमें वो रूल फॉलो करना है कि नेगेटिव नंबर के वक्त इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, बाकी तो सब सॉर्टेड ही था. साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी में वी लर्न हाउ टू कंबाइन कंडीशंस. राइट, वी लर्न हाउ टू कंबाइन कंडीशंस, है ना, साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी में. फिर उसके बाद में फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी में, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में, स्पेशल केस, ये तीनों में. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में हमने देखा ए और डी की वैल्यू निकालो, है ना, उसके हिसाब से ग्राफ प्लॉट करो, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद में तुम्हारी कंडीशन जो भी है उसके हिसाब से आंसर करो. ये हमने सीखा था 3 स्टेप मेथड, है ना. फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी में हमने क्या सीखा था, वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंडीशन सीखे थे हमने. बट फिर हमने एंड में सीखा कि फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी भी तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर सकती हूँ, बस मुझे कंडीशन डालनी है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये कंडीशन मुझे डालनी है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले कंडीशन तो मैं नहीं डालूंगी, राइट. So what I'm going to do is linear inequalities में have to just keep in mind that negative आया, minus sign आया, तो reverse होता है. Simultaneous में we learn conditions कैसे combine होते हैं by drawing that number line overlapping. फिर हमने fractional inequality में सीखा कि denominator not equal to 0 वाली कंडीशन डालनी होती है. Quadratic में हमने सीखा पहले a and d की वैल्यू नोट करो, ग्राफ प्लॉट करो, उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर आएगा. फिर स्पेशल केस में हमने सीखा था वो ऐसा वेव डायग्राम. इस वाले में हमने सीखा वेव डायग्राम, है ना. अभी वो सामने की डोरी को चीर मार से दिखाएगा. स्पेशल केस का ऐसे कंटिन्यूएशन है सामने डोरी का बीच का ये. एंड देन मॉडुलस इनइक्वालिटी सीखी थी, जहां पे हमारा ये कंडीशन था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो mod x इज इक्वल टू x, एंड व्हाटएवर इज इनसाइड द mod इज लेस देन 0 तो mod x इज माइनस x. ये हमने हर एक इनइक्वालिटी की उसकी स्पेशल केस देखी थी, राइट, करेक्ट. तो उसी को अभी हमें आगे सीखना है. बाय द वे ऑफ नोट, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मेरा नाम सामंती डोरे सिंघानिया, है ना, मल्होत्रा ऐसा होता, मजा आता ना, फील आता ना कि आप फाउंडर, है ना. डोरे करने में कोई फाउंडर ही नहीं है, आई एम द फर्स्ट ऑफ द काइंड. क्या मजा आता ना सामंती सिंघानिया, है ना, फील है ना, फील है ना. तो बट अब क्या करें, ठीक है, चलो, ओके, कूल देन. All right, so we are going to do a lot of questions today. There are no concepts. There are no concepts. There are a lot of bunch of questions, some which are revising previous thing and some which are helping you. मतलब concept wise new नहीं है, but solving wise बहुत सारे new questions अभी है. That is because what we're going to do is we're going to see, अब तक हमने जो सवाल देखे उसमें हमने देखा कि सिर्फ mod पूछा है, सिर्फ quadratic पूछा है, सिर्फ fraction पूछा है. But what when all of this gets combined? What when all of this is put together? How do we solve them? How do we tackle them? How do we do it together? ये समझना बहुत जरूरी है, because obviously CAT exam में straight forward तो आता नहीं है, right? So today we are going to do a bunch of questions which are all mix and match. कि पहले सिर्फ मॉडुलस से स्टार्ट हो रहा है, because yes, in the previous class हमने 2-3 questions छोड़ दिए थे और एक रिवीजन भी होना चाहिए. Then we will do mod plus quadratic, we will do mod plus quadratic plus fractional inequality. तो ऐसे करके हम अलग अलग conditions देखने वाले हैं कि कहाँ पे क्या क्या वर्क करता है. एंड उसके बाद then the next stage is go to word problems. There are some word problems जहाँ पे भी inequalities आती है, not just in straight algebra questions are of two types. One is when they give you like the straightforward question you're supposed to solve, like logarithm का दे दिया, functions का दे दिया, ऐसे. दूसरा होता है it is in a combination of like 2-3 things put together. तो वो भी एक चीज है जो हम आज की क्लास में नहीं कवर करेंगे. It will come in the next class part. नेक्स्ट क्लास हमारा होगा और एडवांस क्वेश्चंस, एक्चुअली कैट लेवल क्वेश्चंस, बट दिस इज आल्सो समवेयर वेयर वी आर बिल्डिंग टू गेट टू द कैट लेवल वाला पार्ट, ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ बंच ऑफ क्वेश्चंस एंड आई एम आल्सो गोइंग टू टीच यू अ फ्यू ट्रिक्स और अ फ्यू स्टेप्स और अ फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चंस व्हेन मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज कम टुगेदर, ठीक है. बट फॉर पहले तुम लोग सॉल्व करोगे, करो ये सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ क्विकली. ओके,
दैट्स ओके, गुड गुड। चलो लेट्स डू इट टुगेदर। हम मैंने जैसे तुम्हें पहले सिखाया था वैसे ही, थोड़ा एक स्मार्टनेस, थोड़ा एक हम कुछ स्टेप्स अगर थोड़े कंप्रेस कर पाए तो वो एक अप्रोच आई वुड सजेस्ट कि जब भी ऐसे 2x या ऐसा कुछ होता है ना, तो x को सोलो रखो। x को सोलो कैसे रखेंगे हम, 2 बाहर निकाल के, तो हम मॉड के बाहर 2 निकाल सकते हैं। ओके वेट, ट्रेडिशनली जैसे सॉल्व करते हो वैसे तुम कर ही सकते हो, बाय टेकिंग 2 केसेस। केस 1 इज, मैं ये नीचे सॉल्व करती हूँ, रुको, है ना, क्योंकि मेरे को नई मेथड कुछ बहुत अलग नहीं है, बट हाँ, क्या सवाल है, सवाल इज मॉड ऑफ 2x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यही सवाल है ना हमारा। तो अभी ट्रेडिशनली जो मैंने तुम्हें सिखाया है कि वॉट एवर इज इनसाइड द मॉड, दैट कैन बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वॉट एवर इज इनसाइड द मॉड, आइदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और इट इज लेस देन जीरो, राइट, यही दो कंडीशन थी। उसके हिसाब से हमें x की वैल्यू मिलती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 और x लेस देन 5/2, यही दो कंडीशन है, राइट। पहली वाली कंडीशन के हिसाब से तुम्हारा मॉड ऐसा क्या ऐसा ओपन होगा, दूसरे वाले कंडीशन के हिसाब से मॉड नेगेटिव में ओपन होगा। फेयर, फेयर, यही यही था हमारा। उसके हिसाब से हम दोनों के लिए अपना अपना इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या सॉल्व होगा तुम्हारा, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। और यहाँ निकलेगा -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस -2, तो x इज लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, हाँ लेस देन इक्वल टू 1, राइट, है ना। 3 मतलब ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि +5, तो 3 - 5 इज -2, तो -2x -2 उस साइड लेके गया तो इक्वलिटी रिवर्स हो गया 1, राइट। और फिर हमारा ये इंडिविजुअल कंडीशन आने के बाद हम उसके पेरेंट कंडीशन से उसको मर्ज करते हैं। तो मैं x इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं कि x 5.2 से बड़ा चाहिए, 5.2 इज 2.5, 2.5 से भी बड़ा चाहिए, 4 से भी बड़ा चाहिए, मतलब बेसिकली x ग्रेटर देन 4 होगा ब्रो, राइट, और इक्वल टू भी है। और यहाँ पे x 2.5 से छोटा चाहिए और 1 से भी छोटा चाहिए, है ना, 2.5 से भी छोटा चाहिए और 1 से भी छोटा चाहिए, है। तो अगर 2.5 और 1 दोनों से भी छोटा चाहिए तो मतलब 1 से ही छोटा होना पड़ेगा, तो x बिलोंग्स फ्रॉम -1 और 1 भी इंक्लूडेड, यस और नो। यहाँ पे प्लस माइनस में किसी की गलती होगी, क्या -1 आंसर आया था क्या, आई सॉ इन सॉल्यूशंस किसी ने तो चार्ट पे -1 भी लिखा था, राइट। तो आई होप कि तुमको अभी साइंस तो करेक्ट हो गया कि कहाँ पे क्या गलती होगी, राइट। तो इस तरीके से हमारे आंसर आ गए। अभी इन दोनों को कंबाइन करना है, इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, अच्छा, मतलब बेसिकली x बिलोंग्स फ्रॉम -∞ टू 1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। यहाँ पे ओवरलैप देखना है, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, तो हम एंड लगाते हैं, इसलिए हम ओवरलैप देखते हैं कि दोनों कंडीशन का ओवरलैप क्या है ब्रो, कि कौन सा x है जो 2.5 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, या 2.5 से छोटा है, 1 से भी छोटा है, उस हिसाब से आंसर निकालते हैं। और इन दोनों में, ये दो कंडीशन में होता है और दिस, इसलिए हम डायरेक्ट यूनियन देख लेते हैं, हम इंटरसेक्शन नहीं देखते, राइट। हम बोलते दिस प्लस दिस यूनियन, कंबाइन कर दो दोनों को, तो ये हमारा आंसर है, राइट। तो दिस इज ऑब्वियसली द राइट वे टू सॉल्व एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू गो अबाउट इट। But the whole point is कि there's a मतलब सिमिलर वे, बट अगेन थोड़ा सा अभी हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा स्मार्टर वे। सो व्हाट वी विल डू इज, हम 2 बाहर निकाल लेंगे, तो ये x-5/2 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली x-5/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, ऐसे हो जाएगा। अब जैसे ही तुम्हारा x इस मॉड में होता है, x-a वाली मॉड में होता है, तो कंडीशन क्या होती है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a या x इज लेस देन a, डायरेक्ट कंडीशन आ जाती है, हमें बार बार वो पूरे इनइक्वालिटी मतलब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। दिस तो भी डायरेक्टली नो वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू शुड ब्रिंग योर इनइक्वालिटी इन दिस वाला जोन, x-a वाला जोन, तो हमने ला लिया। तो इस हिसाब से हमको पता है कि भाई मुझे दो कंडीशंस लेनी है, कि मेरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 और माई x इज लेस देन 5/2, एंड देन तो फिर यू सॉल्व द वे यू आर सपोज टू सॉल्व। हाउ डू यू सॉल्व इट, कि फॉर दिस यू आर लाइक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, डायरेक्टली आ गया। एंड फॉर दिस केस इट विल बी बेसिकली माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 5/2 माइनस 2/2, दैट इज -1, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट आंसर्स थोड़े से आ गए कंपेयर टू दैट, अ लिटिल लेसर स्टेप्स, एंड फाइनल आंसर इज तो सेम होगी। मैं वही बोली, तो बहुत स्टार्टिंग डिफरेंस नहीं है, बट इससे क्या होता है ना कि डायरेक्टली ये कंडीशंस ले लेते हो, तुम्हें उसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। दैट इज द होल पॉइंट। तो x बिलोंग्स फ्रॉम -∞ टू 1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, सो दिस इज योर आंसर। इसके बाद लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, करो इसको सॉल्व। ये हम फर्स्ट टाइम सॉल्व करते हैं, राइट। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे दो दो मॉड दिए गए हैं। क्या दिया गया है, दो दो मॉड्स है, एक ही नहीं है, दो दो मॉड्स है। तो जब दो मॉड्स होते हैं तो क्या करना है, देखो
कोई भी मॉड दो कंडीशंस की तरफ ओपन होता है. कीप इन माइंड, ध्यान से सुनेंगे हम. कोई भी मॉड दो कंडीशंस के सामने ओपन होगा. इसका एक कंडीशन क्या होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट. और एक होगा x लेस देन 2. सही बात है कि नहीं? यहाँ पे वो पॉजिटिवली ओपन होगा, यहाँ पे वो नेगेटिवली ओपन होगा. यस और नो? यस और नो? गिव मी यस और नो. यस. इसमें क्लैरिटी है कि ये वाला मॉड दो कंडीशंस में ओपन होगा. वैसे ही ये वाला जो मॉड है, ये भी दो कंडीशंस में ओपन होगा. यहाँ पे -3 आएगा, राइट. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, क्योंकि x प्लस 3 है ना. मैंने क्या बोला था, x माइनस ए वाला जो कंडीशन है उसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, x लेस देन ए आएगा, राइट. तो यहाँ पे -3 आएगा, x प्लस 3 में -3. तो यहाँ पे -3 से बड़ा है या -3 से छोटा है, ये दो कंडीशंस में ओपन होगा. कहने की बात ये है कि टोटल फॉर ईच मॉड देयर आर टू कंडीशंस इन विच इट ओपन्स, राइट. इसको ना मैं थोड़ा और अलग से लिखती हूँ. तो फॉर एनी मॉड देयर आर टू कंडीशंस इन विच इट ओपन्स. तो फॉर दिस इट ओपन्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पॉजिटिवली एंड x लेस देन 2 negatively. And this mod also opens for x greater than equal to -3 positively and x less than -3 negatively. राइट. ये दो कंडीशंस इसके, ये दो कंडीशंस है. और मॉड देयर आर टू कंडीशंस. सो दो मॉड तो टोटल चार कंडीशंस हो जाएगी. चारों कंडीशंस के लिए हम सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं. बट देयर इज स्मार्टर वे टू डू इट. द स्मार्टर वे टू डू इट इज टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग. ध्यान दो अभी यहाँ पे. हमको क्या पता है, देखो अभी ध्यान दो. हाउ कैन वी कंबाइन? ये चार कंडीशंस की तीन ही कंडीशंस बनेगी. क्या ये बनेगी कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है. तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, तो ये इनइक्वालिटी 1 है, ये इनइक्वालिटी 2 है. ठीक है. मॉडुलस 1 है, मॉडुलस 2 है. तो मॉडुलस 1 पॉजिटिव ही ओपन होगा और मॉडुलस 2 भी पॉजिटिव ओपन होगा, बिकॉज इफ x इज ग्रेटर देन 2 देन इट इज ग्रेटर देन -3 आल्सो, राइट. तो सेकंड मॉडुलस भी पॉजिटिव ही ओपन होगा. यस. दूसरी कंडीशन, व्हेन x इज लेस देन -3, व्हेन x इज लेस देन -3, तो ऑब्वियसली सेकंड मॉड तो नेगेटिवली ओपन होने वाला है. बट इफ x इज लेस देन -3 इट इज आल्सो लेस देन 2, तो ये भी नेगेटिवली ओपन होगा, राइट. वर्सेस व्हेन, वर्सेस, तो मतलब हमारा अगर मैं टाइमलाइन बना रही हूँ, नंबर लाइन बना रही हूँ, तो -3 था, 2 था. 2 से जब बड़ा है तो दोनों पॉजिटिव है. 2 -3 से जब छोटा है तो दोनों नेगेटिव है. और जब -3 और 2 के बीच का आ गया, अगर -3 और 2 के बीच का आ गया तो क्या होगा? -3 और 2 के बीच का आ गया तो क्या होगा? जो एक इनइक्वालिटी हमारी पहली वाली, वो नेगेटिव ओपन होगी, बट दूसरी वाली तो पॉजिटिव ओपन होगी ना, राइट. पहली इनइक्वालिटी नेगेटिवली ओपन होगी बिकॉज -3 2 से छोटा ही है ना. इट इज बिलो 2, तो बिलो 2 है इसलिए नेगेटिव ओपन होगी. बट यहाँ पे तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ओपन होगी. यस. तो इस तरीके से हम तीन कंडीशंस ही रख सकते हैं. व्हाट आर वी गोना डू? वी आर गोइंग टू कंबाइन कंडीशंस. हाउ डू यू कंबाइन कंडीशंस? वी नो दैट व्हेन माय क्वेश्चन इज x minus 2 plus x plus 3 less than or equal to 5, I know I'm going to get two branches of it. One number is 2, another number is -3. Right? So what I'm going to do is I'm going to take a condition which is greater. 2 is the bada number, -3 is the shorter number. So I'm going to take a condition where I'll be like x is greater than 2 so that both are positive. छोटे number से छोटा तो both are negative. और बीच के point में ये -3 वाला positive और ये वाला negative हो जाएगा. ठीक है? So these three conditions I'm going to solve for. Understood? So my first condition is for my x greater than or equal to 2. This is my first condition. My x is greater than or equal to 2. यहाँ पे I should have had one more slide. ठीक है. So what I'm going to do is my x is greater than or equal to 2. So what will happen? My both of my things will open positively only. Right? I can solve for this. What is it? What's the answer here? 2x is less than or equal to 4 आ रहा है. तो x is less than or equal to 2 आ रहा है, right? Yes or no? Yes. Yes. तो फिर ये दोनों कंडीशंस कंबाइन करनी पड़ेगी. ये दोनों कंडीशंस कंबाइन करके हमको क्या आंसर आ रहा है? हमको आ रहा है भाई तुम्हारा x इज इक्वल टू 2. एक ही आंसर आया. ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी है, लेस देन इक्वल टू 2 भी है, मतलब x इक्वल टू 2 है, राइट. सेकंड कंडीशन वी आर गोइंग टू टेक फॉर x लेस देन -3. तो दोनों भी इनइक्वालिटीज विल ओपन नेगेटिव. दोनों भी इनइक्वालिटीज विल ओपन नेगेटिव. सो इट विल बी बेसिकली -x plus 2 -x minus 3 less than or equal to 5, right? When you solve this, what comes? X greater than -3 आता है, right? Greater than equal to -3 आता है, right? Yes. So it comes x greater than equal to -3. So is there any common answer for x less than -3 also, greater than equal to -3 also? No. So there is no such x.
ठीक है, एंड देन यू टेक द थर्ड कंडीशन, जिसके लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो आई एम गोना इरेज दिस पार्ट. Should I erase this part or should I keep it? I think I should keep it, na, for your sake. Third condition is that my x is greater than, it's like -3 और 2 के बीच में मेरा x, -3 और 2 के बीच में मेरा x. तो उस समय पे क्या होगा, मेरी इनइक्वालिटी कैसे ओपन होगी, जो 2 वाली इनइक्वालिटी है वो नेगेटिव ओपन होगी और 3 वाली पॉजिटिव ओपन होगी, राइट. सो इट विल बी बेसिकली, लेट मी टेक स्पेस, we take space and solve here, and solve here. ठीक है, इस स्पेस में सॉल्व करके ऊपर. ठीक है, तो माय इनइक्वालिटी हियर विल बिकम, पहला वाला -x+2 और ये तो पॉजिटिवली ओपन होगा, x+3 लेस देन इक्वल टू 5. सॉल्व दिस, क्या आता है आंसर, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है, राइट. तो मतलब 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो यहाँ पे, तो फिर अगर 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन. Does it mean that no such x exists? Does it mean that it is true for all the x's? It will mean two things, कि एक तो no solution और it will mean कि it exists for all x's. क्या होगा दोनों में से, बताओ तो. It's absolutely true, right? 5 is equal to 5, right? Is there any debate to this? Is there any debate to this? Is there any debate to this? 5 is equal to 5, right? If 5 is equal to 5, matlab, it is absolutely true. 5 is equal to 5 is always true. So if something is always true, what does it mean is all x's. कोई भी x ले लो, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो इनइक्वालिटी हमेशा करेक्ट ही होगी. So it is true for all x that are between this range. It is true for all the x which are between this range. तो मतलब x belongs from -3 to 2. राइट, अब यहाँ पे आंसर क्या है, -3 to 2 है और इक्वल टू 2 भी है, मतलब फाइनल आंसर इज कि -3 से लेकर 2 तक और 2 को भी दे दो स्क्वायर ब्रैकेट. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. डू वी गेट इट, राइट. पहले इसके लिए नो सच एक्स था, इसके लिए x इक्वल टू 2 ही था बस. तो एक्चुअल आंसर तो यही है कि भाई -3 और 2 के बीच में सारे वैल्यूज इंक्लूडिंग -3 एंड 2. गिव मी थम्स अप इफ यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस. Combining of very good, very good, very good, very good, very good. I see the thumbs ups. Very nice, है ना. चलो, किसी को डाउट है तो मुझे चैट पे बताएगा अभी. मीनवाइल ये क्वेश्चन सॉल्व करो. This also has 2 mods. किसी को कोई डाउट है तो मुझे चैट पे पूछो, I'll answer you. यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है mod x-5 और mod x+3. इसका निकल के आएगा 5, इसका निकल के आएगा -3. तो कंडीशंस क्या क्या बनेगी, एक बनेगी कि mod x 5 से बड़ा है, दूसरा mod -3 से छोटा है, और तीसरा तुम्हारा x, और तीसरा तुम्हारा जो x है वो -3 और 5 के बीच में, और यहाँ पे -3 इंक्लूड करा देंगे हम. कहीं पे भी इंक्लूड करा सकते हो तुम ना, -3 यहाँ पे भी इंक्लूड करा सकते हो, फिर यहाँ से एक्सक्लूड करा दो, यहाँ पे ऐसा वाला ब्रैकेट दे दो. इट्स वन एंड द सेम थिंग, पोटैटो पोटैटो. ठीक है, ये 3 कंडीशंस बनेंगी, सही है. जब, क्योंकि 2 ही नंबर्स है अपने पास, -3 और 5, जब x 5 से बड़ा है मतलब दोनों इनइक्वालिटीज पॉजिटिव ओपन होने वाली है. तो लेट अस सॉल्व. दिस बिकम्स x -5 -2 into x+3 -1 less than 0. So this becomes x -7 into x+2 less than 0. ठीक है, इसको मैं सॉल्व करने जा रही हूँ. मेरे को ना स्पेस चाहिए होगा, या मैं यहीं पे कर दूं, रुको. यहाँ पे क्या होगा, 7 है और -2 है, ये वो वाला बन गया x-b वाला पैटर्न बन गया, राइट. फिर यहाँ से ऐसे होगा, वेव्स बनेंगे, राइट. हमें लेस देन 0 बोला है, लेस देन 0 कहाँ पे है, -2 और 7 के बीच में, -2 और 7 के बीच में. तो इसका आंसर आ गया, हमको ग्रेटर देन 5 चाहिए पर x, तो हमें 5 से बड़ा चाहिए, और -2 और 5 के बीच, 7 के बीच में, मतलब ऑब्वियसली 5 to 7 होगा आंसर. तो आंसर इज 5 to 7, जिसमें 7 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड है. फिर सेकेंड कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल टू ये है, तो इसमें क्या होगा, दोनों भी नेगेटिव ओपन हो गए. सो दिस बिकम्स -x + 5 -2 into -x -3 -1 less than 0. So which is
which is basically minus x plus 3 into minus x minus 4 less than 0. अब द थिंग इज कि दोनों माइनस माइनस एक्स है, दोनों को माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस वन वन ही बन जाएगा, राइट? तो दोनों का भी एक्स हम बाहर ये निकाल सकते हैं, तो ये एक्स माइनस 3 हो जाएगा, ये एक्स प्लस 4 हो जाएगा। समझ गए मैंने क्या किया? मैंने बस तुम्हारा माइनस वन बाहर निकाला है पहले ब्रैकेट से, तो ये एक्स माइनस 3 बन गया, और दूसरे ब्रैकेट से भी माइनस वन निकाला तो एक्स प्लस 4 बन गया, माइनस वन इंटू माइनस वन तो वन बन गया, तो मूट पॉइंट। तो अगेन इसको भी सॉल्व करो, यहाँ पे क्या 3 और माइनस फोर और 3 प्लॉट होंगे, ऐसा आएगा, है ना? हमें क्या करना है, लेस देन जीरो निकालना है। लेस देन जीरो कहाँ पे? यहाँ पे माइनस फोर और 3 के बीच में, माइनस फोर और 3 के बीच में, माइनस फोर और 3 के बीच में। एंड द आंसर इज, तुम्हें चाहिए माइनस 3 से छोटा, माइनस 3 से छोटा मतलब माइनस 3 से लेकर, मतलब माइनस 4 से लेकर माइनस 3 तक आएगा आंसर। तो द आंसर विल बी हियर माइनस 4 टू माइनस 3 वेयर माइनस 3 इज इंक्लूडेड, राइट? ये तुम्हारा आंसर हो गया। थर्ड कंडीशन इज दिस, माइनस 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, और जो बड़ी वाली इनइक्वालिटी है वो नेगेटिव ओपन होगी, बिकॉज 5 से छोटा है। सो दिस बिकम्स माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 2 इंटू x plus 3 minus 1 less than 0. So this becomes minus x plus 3 into x plus 2 less than 0. ये माइनस बाहर निकालो, this becomes x minus 3 into x plus 2 greater than 0, because एक ही माइनस वन निकला अभी पहले ब्रैकेट से, तो वो उस साइड जाएगा, 0 डिवाइड बाय माइनस वन, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे क्या क्या प्लॉट हो रहा है, यहाँ पे माइनस 2 और 3 प्लॉट हो रहे हैं, सेम सेम चीज। और आंसर क्या है, ग्रेटर देन 0 बोला है। ग्रेटर देन 0 मतलब ये रीजन आएंगे, ग्रेटर देन 0 के लिए ये रीजन आएंगे। ये रीजन में हमें ओवरलैप करना है। पेरेंट कंडीशन क्या है भाई, कि माइनस 3 से माइनस 5 तक, तो पेरेंट कंडीशन बोलता है माइनस 3 से लेकर आंसर होना चाहिए 5 तक। तो एक्चुअली आंसर कौन सा आएगा, माइनस 3 से माइनस 2, राइट? इतना रीजन माइनस 3 से माइनस 2, यहीं पे प्लस है क्योंकि, और यहाँ पे 3 से लेकर 5 तक। तो योर आंसर इज माइनस 3 टू माइनस 2 यूनियन 3 टू 5, राइट? यूनियन 3 टू 5, तीनों को कंबाइन करेंगे अभी हम, है ना? वी विल कंबाइन दीज थ्री कंडीशंस। व्हाट डू वी गेट आफ्टर कंबाइनिंग थ्री कंडीशंस? मेरे पास थी जगह, बट मैंने वहीं पे खिचड़ी कर दी। फर्स्ट का कंडीशन था 5 टू 7, इसमें 5 इंक्लूडेड था, सॉरी। दूसरा कंडीशन यूनियन माइनस 4 टू माइनस 3 यूनियन माइनस 3 टू माइनस 2 यूनियन 3 टू 5। सबको कंबाइन करो, क्या क्या आंसर्स है हमारे। इफ वी पुट इट ऑन द ग्राफ, व्हाट ऑल डू वी गेट? वी गेट minus 4 to minus 3, minus 3 to minus 2. So it becomes minus 4 to minus 2 union 3 to 7. This is your final answer. Fair? Correct? आया नहीं आया? समझ आया ही नहीं आया? नहीं आया तो मैं कैसे समझाऊंगी? ओके ओके yes okay, I want confirmations from each and everyone. Can I switch to the last slide? Yes, I can switch here. If you want me to solve this again spaciously, I will, okay? In the second condition, shouldn't be the answer be minus 4 to 3? Yes. If you look at this condition, the answer comes minus 4 to 3. But तुम्हारा पेरेंट कंडीशन ही तो था ना कि x is less than or equal to minus 3. तो तुम्हें आंसर तो माइनस 3 तक ही लेने पड़ेंगे ना, राइट? तो दोनों कंडीशंस मर्ज करना जरूरी होता है. So this is one methodical way to solve. Another way to solve is using options. So we can clearly do. हम options से clearly evaluate कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा तुम्हारा, राइट? ऑप्शन से इवेल्युएट कैसे करना होता है? फर्स्ट ऑप्शन से माइनस 4 टू माइनस 3, तो सेकंड ऑप्शन से माइनस 3 टू माइनस 2, थर्ड ऑप्शन से माइनस 4 टू माइनस 2. तो व्हाट शुड यू डू? यू शुड चूज अ वैल्यू, ठीक है? लेट्स से यू चूज अ वैल्यू व्हिच इज माइनस 2.5. माइनस 2.5 ऐसी वैल्यू है, माइनस 2.5 ऐसी वैल्यू है जो इन दो रीजन में आएंगी बट इस रीजन में नहीं आएंगी, बिकॉज 3 से बड़ा है माइनस 2, राइट? माइनस 2 से छोटा है, तो उससे क्या होगा? लेट्स से फॉर माइनस 2.5 आंसर इनइक्वालिटी में डालेंगे हम x की जगह 2.5 माइनस 2.5 और आंसर करेक्ट आ गया तो इसका मतलब बी और सी आंसर्स होंगे, बी और सी में से कुछ. बट अगर नहीं आया तो हमें पता होगा कि भाई माइनस 4 टू माइनस 3 आंसर होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा फिर.
समझ गए? सो ट्रिकी तरीके से वी हैव टू चूज वैल्यूज इस तरीके से कि हमारी इनइक्वालिटीज इवैल्यूएट हो। तो लेट्स से हमने -2.5 डाला है, तो -2.5 से सॉल्व करके देखो क्या आता है। -2.5 इंटू -5 -7.5, -7.5 का मॉड निकलेगा, है ना? समझ रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ? Let me evaluate it through options, and I feel like somewhere I want to solve this again for larger class का understanding spaciously in the second page. Fair? करूँ ना ऐसा? तो we are going to see two ways to evaluate these kind of questions. ठीक है? अगर तुमको एग्जाम में वेट यस अब दिस इज द क्वेश्चन राइट, अगर तुमको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे ऑप्शंस दिए हैं, तो हम मैन्युअली क्यों सॉल्व करेंगे? हम ऑप्शंस के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, राइट? ऑप्शंस को ही हम इवैल्यूएट करेंगे। अब ऑप्शंस इवैल्यूएट करते कैसे, राइट? तो पहले मैं ऑप्शंस इवैल्यूएट करने वाला टेक्निक बताऊंगी, और फिर आई टेल यू द theoretical method also, because that is also important in theta questions. I'll tell you how, ठीक है? बट पहले इसका ध्यान देते हैं। तो अगर हमें ऑप्शंस दे दिए हैं तो हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट? हमको पता है पहले ऑप्शन में -4 टू -3 दिया हुआ है। अब -4 टू -3, सेकंड इसमें -3 टू -2, यहाँ पे -4 टू -2, right? So now you have to take numbers in such a manner that it strategically eliminates options. Let's say you take x is equal to -2.5. So it will be out of this range. It won't be part of this range because -3 से बड़ा है -2.5, right? तो अगर हमने x -2.5 डाल दिया और हमारी इनइक्वालिटी ट्रू हो गई, आंसर लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, राइट? बट अगर इनइक्वालिटी फॉल्स हो गई -2.5 के लिए, तो मतलब -2.5 रेंज में है ही नहीं, तो मतलब बी और सी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, और फिर साथ में ऑल ऑफ दिस भी एलिमिनेट हो जाएगा, राइट? यस, सो दैट इज हाउ यू स्ट्रेटेजिकली डिसाइड। तो वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट दैट x इज -2.5, डाल के देखो x इक्वल्स टू -2.5, डाल के देखो क्या आता है। मॉड ऑफ -2.5 -5 -2, सॉरी ये -2 इंटू -2.5 प्लस 3 -1, राइट? अब -2.5 -5 -7.5, तो ये पॉजिटिव 7.5 बन जाएगा मॉड के बाहर निकल के, इंटू ये -2.5 प्लस 3 कितना होता है 0.5, तो 0.5, तो 0.5 ही रहेगा -1। ये कितना आता है, ये 5.5, 5.5 इंटू -0.5, राइट? 0.5 minus -0.5. Is this less than 0? Is this negative? Yes. It is less than 0. It is negative. Yes. तो अगर it is less than 0, इसका मतलब x equals to -2.5 एज एन आंसर हमको चलेगा, है ना? हमें चलेगा, बट इस रेंज में तो उसको लिया ही नहीं है। तुमने तो -3 से छोटा बोल दिया, तो मतलब दिस इज डेफिनेटली नॉट माय आंसर, एंड ऑल ऑफ दिस इज आल्सो डेफिनेटली नॉट माय आंसर। सो नाउ आई हैव टू इवैल्यूएट ओनली बी एंड सी। हाउ डू आई इवैल्यूएट बी एंड सी? लेट्स से बी एंड सी में पॉजिटिव वैल्यूज देखती हूँ। यहाँ पे 3 to 5 बोला है, यहाँ पे 3 to 7 बोला है, तो मैं 6 ले लेती हूँ। 6 के लिए ट्रू है कि नहीं देख लेती हूँ मैं। अगर मेरा x इक्वल्स टू 6 मैंने डाला, तो मेरी इनइक्वालिटी क्या बनती है, 6 - 5 - 2 इंटू 6 प्लस 3 -1, ये कितना आएगा 1 - 2 इंटू 9 - 1, दिस इज -1 इंटू 8। इज दिस लेस देन 0? यस, इट इज लेस देन 0, तो 6 के लिए तो चलेगा। और यहाँ पे तो सिर्फ बोला है 5 तक, नहीं नहीं 6 भी चाहिए हमको रेंज में। सो व्हाट इज योर राइट आंसर नाउ? ऑप्शन सी। डू यू गेट दिस मेथड? कैसे हमने सिर्फ 2 वैल्यूज लिए और सिर्फ 2 वैल्यूज के हेल्प से हमने इवैल्यूएट कर दिया। डू यू गेट दिस मेथड? यस और नो? यस। So whenever options are given to you, you are going to directly evaluate and strategically take which values to take. कैसे वैल्यूज लोगे जिससे हमारी इनइक्वालिटीज प्रॉपर्ली ये होगी, वो जरूरी है। अगर तुमने नंबर्स गलत ले लिया ना, तो यू विल हैव टू ट्राई फॉर 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर। बट अगर तुमने प्रॉपर नंबर्स ले लिए, तो एक या 2 नंबर्स एक्स की वैल्यूज में ही आंसर तुम्हारा आ जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्ट वे टू सॉल्व, मतलब trial and error method way to solve. So this is how you know that option C is right. But let's say the question is theta question, where they say how many integer values, for how many integers value is this true? अगर ऐसा सवाल कैट में ऐसे सवाल आता है कि फॉर हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज दिस इज ट्रू, तो उसमें ऑप्शंस रहेंगे क्या? और रहेंगे भी तो हम इनइक्वालिटी जज कर पाएंगे क्या? नहीं। वी विल हैव टू सॉल्व इट मैन्युअली। सो हाउ आर वी गोना सॉल्व? दिस इज हाउ। ध्यान देंगे सब अच्छे से। क्या है हमारा? मॉड ऑफ x - 5 -2 इंटू मॉड ऑफ x + 3 -1 लेस देन 0। ठीक है, इसमें मॉड वैल्यू बराबर लिखा करो, नहीं तो तुम्हारा वो 1 जैसा दिख जाएगा, और ये 3 के 3 मॉड की जगह 31 दिख जाएगा। तो बी श्योर दैट यू राइट प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे 2 मॉड्स है, हम कैसे कंडीशंस लेने वाले हैं? अगेन कीप दिस इन माइंड। कैसे कंडीशंस लेने वाले हैं? यहाँ पे आएगा 5
यहाँ पे आएगा -3। तो हमारी 3 कंडीशन बनेंगी। कौन सी? फर्स्ट कंडीशन इज my first condition is my x is greater than equal to 5, right? Right. Second condition is my x is less than or equal to -3, and third condition is x belongs to -3 to 5, -3 और 5 के रेंज में, बीच का, right? Right. Greater than 5 में क्या होगा? दोनों भी inequalities पॉजिटिव ओपन होगी, so this will be x minus 5 minus 2 into x plus 3 minus 1 less than 0, right? So this goes ahead to make x minus 7 into x plus 2 less than 0. So ये ऐसे x minus a, x minus b, we solve it, we make this. इसमें क्या होगा? -2 और 7 प्लॉट होगा, ऐसा आंसर आएगा। हमें लेस देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव पार्ट चाहिए, और ऐसा नेगेटिव पार्ट चाहिए जो 5 से बड़ा हो। 5 से बड़ा हो मतलब 5 और 7 तक आंसर आ गया हमारा, राइट? -2 से 7 तक था, बट 5 से भी बड़ा चाहिए हमें। योर आंसर इज 5 to 7, है ना? फिर सेकेंड इनइक्वालिटी हमने सॉल्व करी। अगर लेस देन -3 तो दोनों इनइक्वालिटीज नेगेटिव ही ओपन होगी। तो नेगेटिव कैसे ओपन होगी? -x plus 5 minus 2 into -x minus 3 minus 1 less than 0. If I solve it, what comes? It comes -x plus 3 into -x minus 4 less than 0. माइनस माइनस हम निकाल लेंगे, राइट? -1 निकाल लेंगे तो ये x minus 3 बनता है, ये x plus 4 less than 0, राइट? तो ऐसा करने से यहाँ पहले भी ब्रैकेट से -1 निकला, दूसरे भी ब्रैकेट से -1 निकला, राइट? तो -1 into -1 +1 हो गया, राइट? इसका भी हम ये प्लॉट करेंगे, विच इज 3 -4 and 3, राइट? हमें फिर से लेस देन 0 नेगेटिव निकालना है, बट ऐसा नेगेटिव कि x ऑल्सो -3 से बड़ा होना चाहिए। ब्लू कलर से लिखती हूँ, सॉरी, -3 से छोटा होना चाहिए, -3 से भी छोटा चाहिए, और -4 और -3 के बीच में चाहिए। मतलब क्या होगा? क्या आंसर है हमारा? -4 to -3। एंड देन लास्ट कंडीशन इज दिस, इसके वैल्यू में क्या होगा? तुम्हारा ये वाला नेगेटिव ओपन होगा, ये वाला पॉजिटिव ओपन होगा, है ना? 5 जो बड़ा नंबर है 5, उसका वाला नेगेटिव ओपन होगा, बिकॉज 5 से छोटा है। सो दिस बिकम्स -x plus 5 minus 2 into x plus 3 minus 1 less than 0. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है -x plus 3 into x plus 2 less than 0. माइनस निकाला बाहर तो x minus 3 into x plus 2 greater than 0 बन गया, राइट? इसको भी प्लॉट करो, -2 प्लॉट होगा, 3 प्लॉट होगा। हमें ग्रेटर देन 0 निकालना है इस बार, हमें ग्रेटर देन 0 निकालना है इस बार, तो इट विल बी हियर, बट वी वांट आवर x टू बी बिटवीन -3 and 5। तो आंसर क्या आ गया कंबाइन करके? -3 से लेकर -2 है, यूनियन 3 से लेकर 5 तक है, करेक्ट? यहाँ पे हमारे आंसर है। ये सारे कंडीशंस को अगर हम ये 1 2 3 4 सारे कंडीशंस को हम मर्ज करते हैं तो नेगेटिव साइड पे -4 to -3, -3 to -2, मतलब x बिलोंग्स फ्रॉम -4 to -2, यूनियन पॉजिटिव साइड पे 3 to 5 एंड 5 to 7, मतलब 3 to 7। यही आंसर था ना हमारा, -4 to -2 एंड 3 to 7, यही था ना ऑप्शन सी। सो दैट इज योर आंसर, ठीक है? सो देयर आर बोथ द वेज। सो इफ दे आस्क यू हाउ फॉर हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज इट इज ट्रू, so we know कि -4 to minus कितने, tell me for how many integer values is this inequality true? How many integer values is it true? For how many integer values? इन दोनों के बीच में बस एक -3 आएगा, because -4 is not included, -2 is also not included, right? और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? 4 5 and 6। so total 4 integer values के लिए -3 4 5 and 6, these are the 4 integer values for which this inequality is true। तो इस तरीके से हम सॉल्व करें।